So now we are going to start this exercise, miscellaneous exercise of chapter 3. Look at this question number 1 here. In this question, we need to prove that 2 cos pi by 13, cos 9 pi by 13, cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 equal to 0, right? So this thing we need to prove. So let us take the left hand side in this case and try to solve it. And right hand side is equal to 0. So it must comes out to be 0. तो 0 आनी चाहिए. अब इसमें हम लोग 5 और 3 8 4 cos x plus cos y of minus 10. Okay, so now we need to apply the identity here. So let me write that identity I am going to use here on this side. So we have discussed this identity is cos x plus cos y. ये आइडेंटिटी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. इज इक्वल टू दैट आइडेंटिटी इज 2 cos x plus y by 2 and cos x minus y by 2. So let us apply this identity 1 on these terms. In terms में लगाते हैं इस पे. This is cos x, this is cos y. So first term as it is cos pi by 13, cos 9 pi by 13 प्लस इस पे आइडेंटिटी लगाएंगे अगर हम तो ये आएगा 2 cos x कितना है यहाँ पे 3 पाई और y कितना है 5 पाई बाय 13. सो 3 plus 5 is 8. इट कैन बी रिटन एज 8 पाई. 8 का जब हम लोग हाफ करेंगे, यहाँ पे देखिए 2x plus y, 8 का हाफ करेंगे तो इट बिकम 4 पाई बाय 13, राइट. cos अब इसे माइनस करना है x माइनस वाई. सो 3 पाई माइनस 5 पाई या 5 पाई माइनस 3 पाई करते हैं 2 पाई आएगा. 2 पाई को डिवाइड करेंगे तो इट बिकम पाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 2, राइट. सो x की जगह पे आप रखेंगे 3 पाई बाय 13 यहाँ पे और y की प्लेस पे आप रखेंगे 5 पाई बाय 13. तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2 cos 4 बाय 13. इसको आप सोल्व करके देख सकते हैं. आगे देखिए, इफ यू लुक एट दिस cos pi by 13 is common from here. 2 is also common. So what is remaining inside is it is cos 9 pi by 13 plus और यहाँ पे बचेगा cos 4 pi by 13. So this thing is remaining, right? So now let us apply again apply this identity number 1. यहाँ पे फिर से अप्लाई कर देते हैं इसमें. So this is 2 cos pi by 13 as it is. इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 cos, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो. 9 plus 4 13, 13 को 13 से 13 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे इट कम्स आउट टू बी पाई बाय 2. cos 9 में से 4 जाएंगे तो 5 पाई बाय 13 into 2, right. So all these terms as it is, cos pi by 13, 2 as it is. What is the value of cos 90? What is the value of cos 90? Zero. Yes, it's 0. So put it equal to, yes, 0. तो यहाँ पे 0 रखा. अब ये 0 से सब टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएं, 0 से कोई भी मल्टीप्लाई हो जाए तो इट बिकम 0. सो दैट्स इक्वल टू RHS. So इनको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी हम लोगों को. 0 ने all the terms are in multiplication and it become 0 and it's equal to RHS. I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question number 2 here. Sin 3x plus sin x into sin x, cos 3x minus cos x into cos x is equal to 0. So left side लेते हैं. Let us take the left hand side. Some identities we required here. The identity for sin x plus sin y.
and the identity for cos x minus cos y. So what is this identity? Sin x plus sin y. It's 2 sin x plus y by 2 sin, it's not sin, cos x minus y by 2. And this identity is minus 2 sin x plus y by 2 एंड साइन एक्स माइनस वाई बाई 2. तो मेन चीज है यहाँ पे आइडेंटिटी. अगर आपको आइडेंटिटी याद है, फॉर्मूला आपको याद है, देन द क्वेश्चन विल बिकम वेरी इजी फॉर यू. एंड इफ यू डू नॉट रिमेंबर दीज आइडेंटिटीज देन इट इज डिफिकल्ट टू सोल्व दिस क्वेश्चन. अब देखिए यहाँ पे एक आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूं मैं, इसमें फर्स्ट वाले में साइन एक्स प्लस साइन वाई में साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो ये आएगा 2, इट्स 2 साइन एक्स प्लस वाई. यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बाई 2, तो x कितना है 3x, y कितना है x 4x, 4x का हाफ कितना आएगा 2x. 3 माइनस x माइनस वाई, तो 3x माइनस x 2x, 2x का हाफ x इंटू साइन x. ठीक है, प्लस अब मैं आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा इसके ऊपर, cos x माइनस cos y. x की वैल्यू कितनी है 3x और y की वैल्यू, x की जगह पे 3x और y की जगह पे x. सो पुट एट द प्लेस ऑफ x 3x और y की जगह पे x पुट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 2 साइन, देखो 3x प्लस x 4x, 4x का हाफ 2x. देन अगेन साइन 3 माइनस x 2x, 2x का हाफ this, and this cos x as it is. So this is the terms we have obtained from here, right? Now if you look at these two terms here, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, sin 2x sin 2x, cos x cos x, sin x sin x. So this term cancel this term and is equal to 0, and we can say that is equal to RHS. I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question number 3 here. So let us take the left hand side of this question. पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं cos x प्लस cos y के ऊपर. सो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा cos स्क्वायर x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट. अगेन अप्लाई a माइनस बी होल स्क्वायर ऑन दिस, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट. आफ्टर दिस अगर आप ये देखेंगे कोस स्क्वायर यहाँ पे है और साइन स्क्वायर यहाँ पे है, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1. लुक एट दिस, कोस स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y, इट कम्स आउट टू बी 1, एंड दिस इज द रिमेनिंग टर्म, राइट इट हियर, 2 cos x cos y, and this is the remaining term minus 2 sin x sin y, right. Now take 2 common from here. यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है. सो अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो रिमेनिंग हियर इट इज 1 प्लस ये बचेगा cos x cos y माइनस sin x sin y. ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आपको. देन 2 दिस वन एज इट इज. एक आइडेंटिटी होती है cos x cos y माइनस sin x sin y. इट कैन बी रिटन एज cos x प्लस y. इसको हम लोग cos x प्लस y लिख सकते हैं, राइट. सो आफ्टर दैट दिस 2, यहाँ पे देखिए 1 प्लस cos x प्लस y, 1 plus cos x plus y. So let me write that identities we have used on this side here. यहाँ पे लिख देता हूँ. ओके, तो सबसे पहले आइडेंटिटी हमने यूज की है यहाँ पे, एक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, राइट. सेकेंड हम लोग ने आइडेंटिटी यहाँ पे यूज की है, दैट इज कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कैन बी रिटन एज
कोस एक्स प्लस वाई, राइट। थर्ड आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है कोस टू एक्स। कोस टू एक्स इज इक्वल टू 1, ये थी 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। इस आइडेंटिटी से मैं एक नई आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो इस अगर मैं इस 1 को इधर ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा 1 प्लस कोस 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इफ आई शिफ्ट दिस 1, ये आइडेंटिटी हम लोगों ने डिस्कस की थी, कोस 2x की आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसका अगर मैं एंगल हाफ कर देता हूँ इस आइडेंटिटी में, तो 1 प्लस, अगर मैं 2x की जगह पे x लिख देता हूँ तो इधर एंगल बेसिकली हाफ कर दिया, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, x बाय 2। सो आई हैव फॉर्म्ड अ न्यू आइडेंटिटी बाय यूजिंग द प्रीवियस आइडेंटिटी हियर। सो 1 प्लस कोस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस आइडेंटिटी। 1 प्लस कोस एक्स वी कैन राइट इट एज 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस आइडेंटिटी हियर। देखो 1 है, प्लस है, कोस है, ये 2, ये x है। सो इट कैन बी रिटन एज बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, x की जगह पे यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई। सो इट कैन बी रिटन एज 2 कोस स्क्वायर, x की जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे, x प्लस वाई बाय 2, right? So then it can be written as 4 cos square x plus y by 2 and that's equal to RHS। यही हमें प्रूव भी करना था इसमें, right? I hope this question is clear to you. So this is what we need to prove in this question, right? So the main important thing in this question from this exercise and from this chapter 3, these identities are the very important thing. So you must remember these identities. And how to remember these identities? Write each and every identity each and every time when you use it. जब भी आप यूज करते हैं आइडेंटिटी को, तभी आप आइडेंटिटी को लिखें जरूर। कोई कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, हर एक क्वेश्चन में जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जैसे अभी हम लोग सोल्व कर रहे हैं, तो आप आइडेंटिटी को बार बार लिखें। ईच एंड एवरी टाइम राइट द आइडेंटिटी। बट इन एग्जाम पेपर में भी आपको लिखनी चाहिए आइडेंटिटी, दैट इज द गुड थिंग। अगर आप आइडेंटिटी लिखते हैं वहां पे भी कि मैंने ये आइडेंटिटी यूज की है। सो इफ यू राइट दिस वन आइडेंटिटी सेवरल टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स व्हेन यू सोल्व द क्वेश्चन, so definitely it will be fixed in your mind. I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question number 4. सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, cos x माइनस कोस वाई साइन एक्स माइनस साइन वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और ओपन करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कोस एक्स कोस वाई, माइनस आ गया यहाँ पे, ठीक है। देन प्लस, प्लस का साइन, और ये इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ठीक है। ये आ गया, राइट। आफ्टर दिस अगर आप यहाँ पे देखेंगे, द सेम थिंग वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, कोस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई इज 1, सो इट्स बिकम 2, राइट। एंड 2 इज ऑल्सो देयर, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, टेक 2 कॉमन फ्रॉम आउटसाइड, और लेट मी राइट दिस टर्म फर्स्ट। ये 2 आ गया इन दोनों का, और ये बचा हमारे पास माइनस 2 कोस एक्स कोस वाई एंड माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। Now take 2 common outside. So inside the remaining is 1 minus cos x cos y minus sin x sin y, right? अगर मैं ये माइनस बाहर ले लूं और इसको ब्रैकेट में रखना चाहूं तो ये प्लस हो जाएगा, right? Then it can be written as 2 1 minus. So this is the identity. This is the identity. Let me write the used identity on this side. So the identities I have used here. तो मैं इस साइड में लिख देता हूं, ओके। सो यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देता हूँ। तो पहले मैंने आइडेंटिटी यहाँ पे यूज की है साइन स्क्वायर
एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स को 1 लेते हैं। ये 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ी है। एक्स हो यहाँ पे या वाई हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। तो मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को 1 लिया है, और कोस स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर वाई को 1 लिया है, राइट। लेट मी राइट द सेकंड आइडेंटिटी आई एम गोइंग टू यूज हियर। दैट आइडेंटिटी इज कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो ये आइडेंटिटी मैं यूज करने वाला हूं। दैट आइडेंटिटी मस्ट बी इक्वल टू कोस एक्स माइनस वाई के इक्वल होती है, राइट। So that is cos x minus y. So this is the identity 1 I have used in this question. This is identity 2. अब मैं यूज करने वाला हूँ आइडेंटिटी नंबर 2 को, राइट। अब इसको यूज करता हूं मैं यहाँ पे। तो देखिए cos x cos y प्लस sin x sin y कैन बी रिटन एज cos x माइनस y। एक और बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मैं अब बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे, जैसा हम लोगों ने पीछे बनाई थी। मोस्ट कॉमनली यूज आइडेंटिटी है क्लास 11th और क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक आइडेंटिटी हमने cos 2x की आइडेंटिटी पढ़ी है, इसी से मैं एक नई आइडेंटिटी बनाने जा रहा हूँ। देखिएगा, इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इस cos 2x को अगर मैं इधर ले जाऊं और साइन को इधर लेके आ जाऊं तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x, ठीक है। अब अगर मैं एंगल को हाफ कर देता हूं, x की जगह पे x/2 रख देता हूं दोनों तरफ, तो इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स, और इधर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। सो एक नई आइडेंटिटी फॉर्म हो गई है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। 1 माइनस कोस एक्स कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर x/2। एक आइडेंटिटी पीछे क्वेश्चन में हम लोगों ने जनरेट की थी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, लेट मी शो यू दिस वन। 1 प्लस कोस एक्स कैन बी रिटन एज 2 कोस स्क्वायर x/2। तो बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। जो भी मैंने यहाँ पे इसको आई कैसे है मैंने ये भी बता दिया है आपको कि हमने इस आइडेंटिटी को यूज करके ये आइडेंटिटी डेराइव की है। ये आइडेंटिटी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, सो वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर। लेट मी समराइज दिस आइडेंटिटीज। इनको समराइज कर देता हूँ। समराइज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, बहुत मोस्टली कॉमनली यूज आइडेंटिटीज हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ समराइज करके, 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स। ये हमारी बुक में गिवन नहीं है, तो ये हमने बनाई है अभी। देखिए डायरेक्टली इट्स कैन बी रिटन एज 1 प्लस कोस एक्स को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर x/2, और इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x/2। So you can note down this identity somewhere, very important identity for class 12th point of view also, and most commonly used identities. Okay, now come back to the question. Look at this, it is written 1 minus cos x. x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 1 minus cos x, x की जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है x minus y. So let us apply that identity to, तो ये आएगा 2 sin square. So this complete can be written as 2 sin square x/2. x कितना है, x minus y/2. So it can be written as 4 sin square x minus y/2. Right? So what we need to prove in this question is, so this is what we need to prove, जो हमें prove करना था. So hence we can say that is equal to RHS, hence proved. So these two questions are little bit similar to each other, question 3 and 4. I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question number 5 here. In this question 5 it is given sin x plus sin 3x, sin 5x, sin 7x, और हमें प्रूव करना है 4 cos x, cos 2x और sin 4x. Okay, so sin 4x we need, sin 4x. तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग आइडेंटिटी एक अप्लाई करते हैं, साइन एक्स प्लस साइन वाई की आइडेंटिटी होती है, तो वो आएगा कोस 7 और 5 12. ओके, सो नाउ लेट अस अप्लाई द आइडेंटिटी इन दिस. सो वी हैव एन आइडेंटिटी, लेट मी राइट ऑन दिस साइड, साइन एक्स प्लस साइन वाई. ये आइडेंटिटी की हमें रिक्वायरमेंट है, अभी इसको लिख लेते हैं.
So that identity is 2 sin x plus y by 2 and cos x minus y by 2, right? इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं. लेट अस टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस. इसकी लेफ्ट साइड ले लेते हैं. LHS. तो पहले देखो sin x प्लस sin 3x पे अप्लाई करते हैं. तो ये आएगा 2 sin x प्लस y. x कितना है और y 3x. तो 3x प्लस x 4x. 4x का हाफ कितना आएगा 2x. ठीक है. देन cos x में से 3x को माइनस करेंगे, या sin 3x को x मान लेते हैं और इसको x y ले लेते हैं x को. तो इसमें से 3x में से x को माइनस करेंगे तो आएगा 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा x, राइट. सो यहाँ पे माइनस एक्स आए, कोस माइनस एक्स हो या कोस एक्स हो, तो बोथ आर द सेम थिंग. कोस एक्स कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू कोस ऑफ माइनस एक्स. सो दिस इज ऑल्सो द आइडेंटिटी वी हैव यूज्ड. तो यहाँ पे आपका माइनस भी आ सकता है, माइनस एक्स भी आ सकता है और प्लस एक्स भी ले सकते हैं, राइट. देन इसमें अप्लाई करेंगे यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन वाई. तो इसमें जब आप आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो बनेगा 2 साइन, ऐड करो 5x को और 7x को. 7 प्लस 5 12. 12 को 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पे आएगा 6x. ठीक है. अब कोस देखिए, 5x माइनस 7x करेंगे तो 2x. तो 2x का हाफ x. ठीक है. माइनस x आएगा और कोस माइनस x को कोस x भी लिख सकते हैं, राइट. नाउ टेक द टर्म्स कॉमन फ्रॉम हियर. यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और कोस x कॉमन आ रहा है. ठीक है. तो रिमेनिंग टर्म्स क्या क्या बचेंगे यहाँ पे. तो एक तो साइन 2x बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे साइन 3x. So remaining is sin 2x plus sin 6x is remaining. Again apply the identity on this. फिर से इस पे sin x plus sin y की identity apply करते हैं. So what we have obtained from here 2 sin, देखो 2x plus 6x 8 होगा, 8 का हाफ 4. cos 2 minus 6 minus 4, minus 4 का हाफ 2x. minus 2x आएगा, मैं 2x ही यूज कर रहा हूं क्योंकि माइनस जो कोस का माइनस होता है वो डिसअपियर हो जाता है. अब देखो 2 टू द 4, टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज कर लें. कोस एक्स, कोस 2x को पहले लिख लेते हैं एंड साइन 4x को यहाँ पे, राइट. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन. दिस इज इक्वल टू RHS, राइट. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू.